पांडा ए पांडा तुइफां हिसाबै बा तुइफां आचुकनाय दलाय जुनाल डेभलपमेंट कमिटिनि अनारेबल चेयरमैन मोजां प्रेमलाल मलसमनो आं बिनि आचुकथाया आचुना बागै कबकजौ हायनो हाय दिनैनि ई प्रोग्रामनि जे आनुষ্ঠাनिक भावे उद्बोधन खालामनाय त्रिपुरा उपजाति एलाका स्वशासित जिला परिषदनि स्पोर्ट्स नाय आईसीएटी डिपार्टमेंटनि Honorable Executive Member Musang Suhel Deborma Sarnabo Bini Achuk Thaya Sunabagai Ang Kobokjau Hai no hai Tinini I program Narwai Okra ba Chief Guest hisabe manjak phainai Atro elakani Honorable MLA Musang Paul Damsu Sarnabo Bini Achuk Thaya Asuna Bagai Ang Kobokjau Hai no hai Ang Tripura Upajati Elaka Swashasito Jila Parishadni Member of District Council Machang Sanjoy Das Sarnabo Bini Achuk Thaya Asuna Bagai Kobokjau Hai no hai Ang Tini Khwai Warriors team ni ingoi ba Khwai Junal Development Committee ni Advisor Committee ni Honorable Chairman Masang Bishu Deborma Sarnabo Bini Achukha Asuna Bagai Kobokjau Hai no hai Onokote Junal Advisory Committee ni Chairman Masang Bipul Deborma Nabo Bini Achukha Asuna Bagai Kobokjau Hai no hai ang Kobokjau Dolai Junal Development Committee ni Joint Chairman Masang Nokul Joy Riang Nabo Bini Achuk Thaya Asuna Bagai Kobokjau Apuni loge loge ang request khainai sini Dini chini pandawo bibinno babe chono help thaika 105 number battalion BSF ni Second Commandant Masang Rakesh Ranjan Sahib Nabo Ang Bini Achuk Thaya Asuna Bagai Kobokjau Hai no hai bin logiwo Monisles Yadav Second in Command Bonabo Bini Achuk Thaya Asuna Kobokjau Hai no hai ang jotono request khainai bibinno subzone ni chairman joint chairman ba Junal Development Committee ni jara members of tongnai rangno dayaso asuna bagai ang Kobokjau Hai no hai chini jagao social worker hisabe manjak phainai tongo atro elakani machang Rati Tripura Sarnabo Bini Achuk Thaya Asuna Bagai ang Kobokjau social worker hisabe tai gisa chini jagao phainai tongo Abhijit Tripura Bonobo Bini Achuk Thaya Asuna Bagai ang request khayo Hai no hai social worker hisabe Sri SK Darlom Sarnabo Bono Bini Achuk Thaya Asuna Bagai Kobokjau Tabok hai ke phade chong tabok sini narwai rangno risari wai chong barangno Sorry proper Birasimal class 12 school ni headmaster Sahib Nabang Bini dayaso Bini Achuk Asuna Bagai request khayo Hai no hai ang Dolai Junal Adhikarik Sri Singomon Sar Singomon Tripura Sarnabo Achuk Thaya Asuna Bagai request khadai Hai no hai ang Khwai Junal Development Khwai Additional Judge Sri Onimesh Das Sarnabo Bini Achuk Thaya Asuna Bagai ang request khayo Hai ke phaide chong tabo sini narwai rangno Sini narwai rangno risari wai ya sana bagai request khainai ang samono subject yo request apni jan Tayang request khainai jara subject use tongnai rao DFO Birasimail IS Khumtoya Jodi Phaitong Khakai Nobo Dayaso Asuna Bagai ang
রিকোয়েস্ট খাইও তাই এসডিপিও মনু যদি তংখাকায় আমি অনুরোধ করছি মাননীয় এসডিপিও সাহেব যদি এসে থাকেন তাহলে ডায়াসে এসে আপনার আসন গ্রহণ করার জন্য यापा खराब लाई दे चोंग चेने नारवाई रंगना चोंग रिसार बाई चोंग यासाक सोका चेने नारवाई रंगनो चोंग एक सीरियल खेल चोंग रेवी थांसिनाय चोंग जरा कमनि बिसिङै चोंग बुंसावै कायसा कायसा काय रिदाने बागै चोंग रिमालि आपने नाकार सानो ताबो चोंग चेन नारवाई रंगना रिसारवाई चोंग याचाक सबाव आपने परेके चोंग जाति मुसुंगना परेकेदा चोंग चेने बानाती सालायनाय बानाती सामाने उलकना चोंग जातीय संगे रोजाबनाय एर परेके चोंग खेला आरम्भ खालायनायनि बागै चोंग थांबाय दंनाय आबोनि बागैनाय जत उइंग्सनि बरो रंगनो जत डिपार्टमेन्टनि जे फाइनाय रंगनो जेमन दनो आरक्षा दप्तर हेल्थ DWS नरंगनो जतनो दलाई जुनाल एवं खोয়াই जुनाल पक्ष থেকে এবং ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে নরংনো বেলাই বেলাই হামবা ইয়াফারো ताबक चोंग चिनी रिसा रिवाय चोंग चिन नारवाय रंना याचाक माने परेखायनो आबोनि लगे लगे ना चोंग चोंग केन्डेल मसंगै तिनि अनुष्ठाने बाबे जों उद्बोधन खालामना थांबाय दङ आं रिक्वेस्ट खायनाय चिनि तिनिनि जे उद्बोधक बा चिनि अनारेबल एक्जिक्यूटिव मेम्बर मचां सुहेल देबबर्मा सारनो अनुष्ठानिक बाबे केन्डेल मसंगै बा जाति मसंगै तिनिनि खेलानो चेंगसारिनन बागै दर्शक खेलुआर रक रेफारिज आरक्षा दप्तर मेडिकल जतन दलाई जुनालनि पक्ष থেকে जतन खाकसांमा ताई हामबा याफारो ताबक सिनि अनारेबल एक्जिक्यूटिव मेम्बर मचां सुहेल देबबर्मा सार बिन लगे केन्डेल मुसुंखा यापा खरब सरते जतन जत मातनि चारिदिके जे तंनाय जत रंगनो ताखौ बखरनो आं रिक्वेस्ट खायो यापा खरबै तिनिनि खेलानो चेंसारिनानि बागै हांकाय ताबो तिनिनि खेलानि फ्लेग होस्टिं खालायनाय तिनि दुइजना दुइटा फ्लेग दङ इमंखा दलाई जन भार्सेस खोয়াই वारियर्स इंकाय दलाई जोननि उंगै फ्लेग तिसानाय दलाई जोनाल डेभलपमेंट कमिटिनि अनारेबल चेयरमैन मचां प्रेमलाल मलसम हाई खोয়াই डेभलपमेंट एडवाइजरी कमिटिनि चेयरमैन मचां बिशुदेव बर्मा सार पताका तिसाकाय नरं जतन याफा खरबदे यापा खरब सरते थरं सिने पताका तिसाय दं उकै तंखा सिने बाना तिसाका अच्छा
Players, you are requested to come on the ground. Players. Tabo, Jennifer Skanga, Woodbodone, Songate, Ba, Resabe Kanarinai. Player Rock, Nok, Jani, Team Manager, Bak Coach Ni, Nidas Montenrong, Buskango Pabede, Tabok Tini, Buskango. Woodbodone Songate, Resabe Kanarinai. Proper Birasimal Class 12 School Ne, Satri Rock. प्लेयर अरे प्लेयर पुस्का फाइका हमनाई कोच एवं टीम लीडर के अनुरोध करছি আপনারা আপনাদের প্লেয়ার নিয়ে সামনে আসুন সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান প্লেয়ার দলাই এন্ডলার্স ভার্সেস খোয়াই ওয়ারিয়র্স এর টিম ম্যানেজারদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের প্লেয়ার নিয়ে মঞ্চে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি Balai sampai sini sinor sawe kalarno tai bori aglon phani ke sini dignity sung koine sini players hoy malai handshake sai sing football start tai relation tai bisi du gaili hello
Tinini narway okra rock, narway motom rock, some way backs up hijack. They have a hacken of Borom Grand Somborok, Sini players of Malaman Yagulono, Sung Sini tournament no, China Kanglasine, Bagay Taktabu, something they visit the Glalia. Norok Tini no Kanaimanai and Milton de Burma, English take over and commentary clinic. Boni Yagulono, Anilogi co host Soromita Bo Hindi Bekline, they logo Mitun. Bobo Hindi by commentary clinic. So Norok Sung Jotono Kanaimanai, Cockbrook Hindi, Thai, English by play. Tinisini, the Borom Grangson, Borok Tabuk, players of Malay, Borno best wishes Ritongo. They Boni Yagolono, football kick-off play, Sing Changlation, Asa Clayo, Thai Awahakeno, Sini tournament no Sing, Sekangi Tanglay and Petty. Hello. 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 नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आज के इस बेहतरीन से मौसम में बेहतरीन से दिन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ 82 माइल्स के इस मैदान में, जहां आज होने जा रहा है टक्कर बिटवीन धलाई एंटलर्स एंड खोवाई वॉरियर्स। हमारी दोनों टीम रेडी हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए, अपना गेम देने के लिए, अपना मैच स्ट्रेटेजी देने के लिए, एवं मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और आप देख सकते हैं हमारे दर्शकगण काफी एक्साइटेड हैं। मैं हमारे आसपास, हमारे मैदान के आसपास देख पा रही हूं बेहतरीन ऑडियंस। हर जगह में इतनी अमेजिंग ऑडियंस नहीं मिलती है जो अपने अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करने के लिए टोटली रेडी है, एंड हम रेडी हैं, साथ ही साथ हमारे ऑनरेबल डिग्निटरीज रेडी हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का मैच कुछ क्षण में। Singtai Diglayoi, football no kick-off play, Singtin in the football tournament, Chengerlane, Paringa and Gone Pula Sini sports ni EM Sano, Tai Sini MLS Sano, Boroconino or Sini Okra his a Palimaba, Sumborno Pulazor Lane Padi. Nice. Paringa, our Hagano, Tau Sing Sini MLS Sunny, One Island, Sini Polang Su Sunny, kick-off was Sing. Let's get ready. Okay, go. And so, Paringa Singtai visit Glalia, kick off Singtai South Atlantic Laka, Paringa Sunung Situn, and Sini Serenan Konet, Avujoto line play Janiza, Atukaya Sunaka. Paringai, Singtai Diglalia, Tinini tournament, Oro Sing Birashi Milos of Palizak, and Tini Belake tournament Kahamungan Singkakayo Tamnihinba, Dolai Antlers by Dolai Antlers by Logivo, Tini Kwai Warriors of Tini. Battle kind of a Tangitongo, Sini players of Joto ready, and Sini officials were Joto ready, and Tai Snaptani Yagolono. Sini players of handshake like Logan Tangising Sini tournament of Chengerline. And so, ladies and gentlemen, you're here at TSL 2024-2025. TTAADC presents TSL, that is Super League, and it's going to be really, really awesome here this afternoon at Dolai, that is in Birasi Mile Stadium. This afternoon. So let's begin, and we will get to know more about what's going to happen next in another few minutes time. Thank you. Absolutely. So अब आप देखेंगे एक बेहतरीन मैच। धन्यवाद देना चाहता है TTAADC presents this Super League Football Tournament, जहां एक बार फिर से आप सभी का हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हमारी तरफ से तालियां, प्लीज एक बार आपकी तरफ से तालियां हो जाए। एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं बेहतरीन डांसर जिनके द्वारा आज
शुरू होगा आज का कार्यक्रम। Thank you so much. Thank you so much. It was wonderful. Thank you once again. Can we have a round of applause for our dancers, please? तो अब शुरू होने जा रहा है द मैच जिसके लिए हम इतने देर से इंतजार कर रहे थे. वी आर सो सुपर एक्साइटेड. होपफुली आप सब भी हमारे साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड आई एम वरीड कि आज कौन जीतने वाला है, फर्स्ट हाफ कौन लेने वाला है. लेट्स सी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इवेंट एंड हमारे ये मैच शुरू होने जा रहा है रेफरी सर के विसल से. सो लेट्स वेट. And it started. Ladies and gentlemen, यहाँ हमारा ये मैच शुरू हो गया है. सीटी बजाते ही मैच की शुरुआत. खोवाई वॉरियर्स एंड धलाई एंटलर्स.
हमारे साथ आज हैं खोवाई वॉरियर्स एंड धलाई एंटलर्स एंड आज के इस मैच में शायद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। पिछले 7 मैचों में आपने बहुत बेहतरीन मैचेस देखे हैं आई गेस, एंड आज है हमारा इस सुपर लीग का 8वां मैच, द 8th मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट, साथ ही साथ ग्रुप बी का 4th मैच। एंड इस मैच में अब हम देखेंगे कि फर्स्ट हाफ कौन लेता है एंड फर्स्ट हाफ में कौन एक बेहतरीन प्रेशर बना देता है दूसरी टीम के ऊपर। हम देख पा रहे हैं कि अभी बॉल्स बहुत बेहतरीन तरीके से पासेस दिए जा रहे हैं, लॉन्ग शॉट यहां दिया गया है एंड यहां कहीं फाउल ना हो जाए। जी हाँ, फर्स्ट हाफ में एक ये रहता है कि अगर स्टार्टिंग से ही कुछ फाउल स्टार्ट हो जाए, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। हमें आज देखना है कि किसकी स्ट्रेटजी में है दम, किसके टीम वर्क में है दम। सो यहां हमारी धलाई एंटलर्स एंड खोवाई वॉरियर्स दोनों ही रेडी हैं। आज दोनों ही टीम्स काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं। मैं तो एकदम ही एक्साइटेड थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कि आज कुछ होने वाला है, बिकॉज बिराशी माइल्स ये मैदान इट इज सुपर न्यू एंड आज के इस टूर्नामेंट में हम देखेंगे कि कौन इस मैदान में बाजी मार लेगा। तो यहां बॉल्स पास हुए जा रहे हैं प्लेयर्स के द्वारा। ये मैदान आप देख सकते हैं, ये मैदान काफी खूबसूरत है क्योंकि आज वेदर भी बहुत बेहतरीन है। यहां बॉल आउटलाइन में बाहर, एवं जैसा कि हमने कहा था आज का ये मैदान काफी बेहतरीन है। आप देख पा रहे हैं एकदम स्टेडी है एंड आज की ऑडियंस बहुत बेहतरीन है। हमारे दर्शकगण लगभग सब फुल्ली रेडी हैं अपने फेवरेट टीम्स को चीयर अप करने के लिए एंड आज कुछ तो अनोखा होने वाला है। दिल की आवाज है कि आज कुछ अनोखा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। एक थ्रो इन एवं ओके, फिर से ये बॉल आउटलाइन के बाहर। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सभी का जो हमें ऑफलाइन ऑनलाइन जो जहां से देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है बिराशी माइल के इस बेहतरीन मैदान पर जो नवोदय स्कूल के करीब बना हुआ है। और इस खेल का भरपूर मजा आप हमें हर जहां घर बैठे जो जहां बैठे हैं ले सकते हैं। आज ही जिसका मैच है खोवाई वॉरियर्स और धलाई एंटलर्स। जानकारी के लिए बता दें, खोवाई वॉरियर्स इससे पहले एक मैच हार चुकी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि आज वो फलसफा फिर दोहराया जाए क्योंकि हार के आगे ही जीत है। तो आज कोशिश करेंगे कि मैच वो जीते। और धलाई एंटलर्स का ये पहला मैच है, 4 नंबर मैच है बी टीम का, और ये चाहेंगे मैच अच्छा चले और एक लंबा मैच चले ताकि इसमें जो हमें खेल की हर एक प्रदक्षिणा होती है वो देखने को मिले, हर एक कला देखने को मिले। तो क्योंकि जैसा कि मिथुन जी ने कहा कि आज धलाई एंटलर्स का पहला मैच है, तो उनकी एनर्जी देखकर ही पता चल रहा है कि आज वो टोटल इस मूड में है कि जीत कर ही जाएंगे। एंड यहां हम देख पा रहे हैं खोवाई वॉरियर्स जो कि एक पहला मैच हार चुके हैं, तो उनकी तरफ से आज एक एक्स्ट्रा लेवल की हमें एनर्जी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आज का मैच अगर वो हारे तो उनको भी पता है उनका स्कोर बोर्ड में जो नाम है, जो उनका टीम है वो नीचे चला जाएगा। तो उनके दिमाग में सिर्फ आज रहेगा कि आज जीतना है, जीतना है, जीतना है। इसके अलावा आप सब देख सकते हैं कि TTAADC आयोजित आज का ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट एवं बहुत दिनों से जो 8वां मैच आज चल रहा है, 7 मैच ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, बहुत से मैच बचे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं TTAADC को इतना खूबसूरत एक आगमन लेने के लिए, आगे आने के लिए, फुटबॉल को एक प्रोत्साहन देने के लिए, जो यूथ है, जो फुटबॉल फैंस है, उनके लिए एक मिसाल बन के आने के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं TTAADC। आज आपके साथ हम जुड़े हैं सौरभ मेहता, मिथुन एंड मिल्टन जी एज एन कमेंटेटर, एंड आशा करते हैं कि आपके साथ आज के इस मैच में हम बहुत सारी यादें एक साथ बनाएंगे। हेलो, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं इस मैच का फलसफा, मैदान में घास उतनी खास है नहीं, काफी धूल है और ऐसा लग रहा है कि अगर मैदान में जो खिलाड़ी दौड़ते हैं तो काफी धूल उड़ती है, तो थोड़ा बचकर खेलना होगा। अगर यहाँ पर कई तरह से फाउल कुछ होता है तो चोटें आने की संभावना भी है क्योंकि मैदान में घासें कम है।
तो हम चाहेंगे कि जो खेल हो वो टेक्निकली हो और जितने भी अच्छे पासेस हो हमें देखने को मिले यहाँ पर, क्योंकि प्लेयर एंटलर्स का पहला गेम है, हम उन्हें उतने अच्छे ज्यादा अच्छी कोशिश यहाँ पर और बढ़िया और ब्लू पैंट ने भैया झंडा गाड़ दिया एंटलर्स से और पहला गोल अपनी झोली पर शोरूमी का। क्या बात, बिल्कुल एक पहला गोल, नजर हटी, दुर्घटना घटी, गोलकीपर की नजर हटते ही ये पहला गोल एंटलर्स के द्वारा, पहला गोल ढलाई एंटलर्स के द्वारा। एंड यहाँ खोआई वॉरियर्स में एक निराशा छा गई है कि पहले ही कुछ मिनटों में एक गोल, एवं अब जो हमारे फेवरेट गेम, जो इस फुटबॉल को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज एंटलर्स, धलाई एंटलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके चेहरे पर आप स्माइल देख सकते हैं। हमारे दर्शकगण जो आज सपोर्ट कर रहे हैं एंटलर्स को, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज फर्स्ट फ्यू मिनट्स में एक गोल, इट्स लाइक सुपर अमेजिंग। एंड अब इस फर्स्ट हाफ में हमें देखना है कि टाई होता है या एंटलर्स और बढ़ोतरी लेता है स्कोर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूं तो हम सब जानते हैं कि फुटबॉल अ स्पोर्ट ऑफ पैशन एंड प्रिसिशन, ये हमारे वर्ल्ड वाइड जहां कह सकते हैं कि सब इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसकी तेजी अलग है, कह सकते हैं जुनून है इस स्पोर्ट में। एवं हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से TTAADC को इस इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि उनके कारणवश जो फुटबॉल फैंस हैं उनको एक अलग सपोर्ट मिल रहा है, कह सकते हैं आगे आने की इच्छा उनमें बढ़ रही है। ग्रेट शॉट, यहां एक लॉन्ग शॉट अपने खिलाड़ी को देते हुए, अपने प्लेयर को देते हुए, देखते हैं कि ये जो लॉन्ग शॉट काम आएगा क्या। जैसे कि हमने पिछले वाले मैच में भी देखा था जो कल हुआ था कि एक टेक्निक लगानी पड़ती है, एवं फुटबॉल एक ऐसा मैच है जहां लास्ट मिनट में भी कुछ हो सकता है, लास्ट कुछ मिनटों में भी पूरी बाजी पलट सकती है। जो हमने कल देखा था, कल हमने जो मैच देखा था वो एक असंभव अमेजिंग एक मैच था, और आज भी आशा करते हैं हम एक बहुत बेहतरीन मैच देखेंगे। यहां मिथुन जी आप देख पा रहे हैं शायद कि हमारे खिलाड़ियों में काफी जोश है, क्यों? देखिए जी, बिल्कुल दर्शक भी जोश में ही है। यहाँ पर जो टेम्पर है दोनों तरफ हाई है। आप इसको धलाई को ले लीजिए और खोआई वॉरियर्स को लीजिए, दोनों तरफ, और उसके जो चाहने वाले हैं उनके दोनों में काफी हाई मोशन बना हुआ है दोनों टीम का। और ये जो गोल किए हैं ये एरोन रियांग 10 नंबर के जर्सी है, और 10 नंबर माना जाता है उस खिलाड़ी के पास ही ज्यादातर होता है जो सबसे एक्टिव होता है फुटबॉल के मैदान में। अच्छा, तभी तो रोनाल्डो का है नंबर 10, क्या बात। तो इट्स काइंड ऑफ अ लकी नंबर, यू नो। तो अब देखना है ये 10 नंबर कितना लक लेकर आता है अपने टीम के लिए, क्यों मिथुन जी? बिल्कुल, अभी देखिए किस तरह से रफ्तार बने हुए हैं धौला एंड्रेस के। देखिए कोशिश से चूक गए, बिल्कुल खंबे से कुछ ही दूर। चलिए, मसला उनके पास एक गोल है, और देखिए उनकी जो एवरेज स्पीड है वो काफी हाई है, और ये जिस तरह से दौड़ रहे हैं मैदान पर, मौका नहीं दे रहे हैं अपने विरोधी को। काउंटर अटैक होने ही नहीं पा रहा है। हमारे धलाई एंटलर्स इतने एक्टिव हैं, एंड मस्ट से दे आर हैविंग अ वेरी वेरी अमेजिंग टीम वर्क, लाइक वाव, इतना बेहतरीन टीम वर्क एवं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश। ये अपॉर्चुनिटी अगर उनके हाथ लग गई तो यहाँ गोल बनता ही है, पर यहाँ काउंटर अटैक हुआ है हमारे खोआई वॉरियर्स की तरफ से। वो भी डिफेंस के लिए फुल्ली रेडी है कि नहीं, हम आपको गोल नहीं करने देंगे। देखिए जिस तरह से डेविड रियांग अभी दौड़ के गए थे, ऐसा लग रहा था कि गोल हो जाएगा, लेकिन ने मिला अच्छी हेड यहाँ पर। बहुत अच्छी कोशिश अब तक। यहाँ पर जो खिलाड़ी है ना, ये एरोन रियांग, वो पहले मैच में भी अच्छा खेले, जहां पर वो खेलते हैं, मतलब उनके नाम पे ये काफी चर्चे हैं कि देखने अभी ये मैच कहां तक जाती, कितने पॉइंट्स कमा पाती है। अच्छी कोशिश थी यहाँ पर, सच बहुत अच्छी कोशिश थी, और कोशिश वही बात है कि अपॉर्चुनिटी हमें देखनी है। यहाँ शायद एक इंजरी हम देख रहे हैं, एक इंजरी हो सकती है एक प्लेयर
धलाई एटलस के काफ़ी ज़्यादा भारतों में भी उब गिर गए एवं हम देख पा रहे हैं फर्स्ट स्टेज शायद जाएगा अभी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन वंस अगेन आप आज देख पा रहे हैं कितने बेहतरीन दर्शकगण हैं आज हमारे साथ। एंड आज के इस बेहतरीन से दिन में आप सभी का फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी आर हैविंग विद अस मिल्टन एज वेल। मिल्टन जी, आपका क्या कहना है आज के इस बेहतरीन से शानदार से मैच में? Yes, Sormita, actually, this is really awesome to see the players from the Dollar Antlers doing really, really well this afternoon, scoring one in the first half and in the first few minutes. And so this is an awesome game that we can see here at Birasi Mile at this point of time. It's really awesome to see such a powerful match from the team. Dolai Antlers. And we hope to see more better matches coming up in the days to come. And TSL 2024-2025 by the TTA ADC government is doing a really awesome job helping the youngsters and helping the young minds to grow well. And I'm sure that more people will come up, more players, more enthusiasts of football lovers will come up in the days to come as well. And looking at the weather, this is really awesome. There is a slight sunshine in the field, but not much. And this will really help the players to, actually play and store their stamina to run in the field and play really well. Let's see what the Kauai Warriors do this time. They need to really work hard and, score the first goal in the first half, like we said before. And I'm sure they're going to do a really, really awesome job this afternoon. What do you say, Mithun? Do you think they can make the first score in the first half? Let's see what happens. Can you just predict, because you've been seeing the match in the past few minutes? मिल्टन जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर जो दबाव अभी तक बना हुआ है वो तो ख्वाई वॉरियर्स के ऊपर बना हुआ है। अगर वो कोशिश नहीं करते आगे जाने का, अपना देखिए इनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी इतना खास नहीं है अभी तक। हम लोग जहाँ देख पा रहे हैं कि धलाई एंटलर्स जिस तरह से अपना देखिए, जिस तरह से उन लोग आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हर एक गोल देने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार वो मौका नहीं चूक रहे हैं, कोशिश जारी है इनकी। तो हम शायद हाफ टाइम से पहले और एक गोल मेरे ख्याल से ये धलाई एंटलर्स के पक्ष में ही जाएगा और कोशिश दोनों तरफ से जारी है। अच्छी कोशिश, धूल उड़ाती आज फुटबॉल यहाँ पर। ऐसी आशा है कि धूल उड़ेगी आज दोनों टीमों के बीच और ये मैच बहुत दूर तक जाएगी आज। Let me also introduce you to the referees here this afternoon. They are really awesome. And Sivajyoti Chakraborty, who is also an international referee, who has been, working with several other places as well. So, ladies and gentlemen, we also have an international referee with us. Also, we have Ravindra Debarma, who's also the officials, and also would like to introduce you to Sushil Debarma and Samiran Tripura, who is also from Dalai. And we really have some of the best referee and linesmen and in our midst today. It's really awesome to see such people amongst us, and there will be more people coming up, more players coming up from Tripura as well. Tripura being in the northeastern state of India is putting up such beautiful game. This is awesome. This is wonderful, and really the TTAADC government is to be appreciated for taking such a wonderful initiative. Definitely, it's true actually. For the first time in the history of Tripura, ऐसा initiative लिया जा रहा है TTAADC के द्वारा, एवं we are thankful, we are grateful, क्योंकि इस स्पोर्ट को, फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको जज्बे की ज़रूरत है, जिसको थोड़े और सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे प्लेयर्स को थोड़े और सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वो सपोर्ट हमें मिलता है, शायद यहाँ एक इंजरी हुई है, सो जैसा कि हम बोल रहे थे, हमारे प्लेयर्स को थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। इफ वी आर गेटिंग दिस सपोर्ट, डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स और आगे बढ़ पाएंगे और आगे जा पाएंगे, त्रिपुरा को और आगे लेकर जा पाएंगे, नेशनली इंटरनेशनली खेल पाएंगे। एंड वी वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन टू द TTAADC इनिशिएटिव, जिनके द्वारा ये फुटबॉल टूर्नामेंट किया जा रहा है। और आज हमारे साथ है ढलाई एंटलर्स
and Khowai Warriors. देखिए सौरमिता, जिस तरह से यहाँ पर चोटें आ रही है ना, वो शुभ संकेत नहीं है। अगर कुछ बड़े, ये वही प्लेयर है जो गिने चुने 11 नंबर के आए हुए हैं, जिनसे उनके कोच की सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं, तो आशा करेंगे कि किसी को चोटें ना आए और खेल जो है उसका उच्च प्रदर्शन हो, और फुटबॉल की सारी जो ट्रिक्स हैं वो शायद यहाँ के लोग देखे, आने वाले छोटे बच्चे देखे, और ये जनरेशन आगे बढ़े और फुटबॉल को प्रोत्साहन मिले, और ये फुटबॉल एक अच्छी जगह अपना अच्छा लेवल ले ले। बिल्कुल बिल्कुल मिथुन जी। पर मिथुन जी, यहाँ आप देख पा रहे हैं तो फील्ड, ये फील्ड एकदम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि आपने कहा है घास एकदम कम है, हम देख पा रहे हैं, तो घास क्योंकि कम है, धूल ज्यादा है, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन भी है हमारे प्लेयर्स के लिए। अगर गलती से ये बॉल, ये पासिंग के समय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, भालू उड़ रहा है, इधर उधर जा रहा है बॉल, एंड ये पूरा एक डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है किसी भी प्लेयर के लिए। और फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट हम देख पा रहे हैं लगभग अंतिम समाप्ति में है, तो अभी अगर फर्स्ट हाफ में हमारे इन प्लेयर्स ने अपना गोल नहीं किया, पहला गोल नहीं किया, खोवाई वॉरियर्स ने अगर हमारा पहला गोल नहीं किया, तो उनके ऊपर सेकेंड हाफ में डेफिनेटली एक बहुत प्रेशर बनने वाला है, क्योंकि उस हिसाब से फील, और यहाँ शायद एक गोल हो सकता है, एंड इट्स अ गोल, इट्स अ गोल। ओके, यहाँ रेफरी के द्वारा शायद ये गोल नहीं है, शायद ये गोल नहीं है, ऑफ साइड हुआ है हमारा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस थी, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिस थी। अगर ये गोल हो जाता तो खोवाई वॉरियर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता, पर अब क्योंकि ढलाई एंटलर्स के द्वारा एक गोल ऑलरेडी हो चुका है, उनका स्कोर ऑलरेडी 1 है, गोल एक ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हमें देखना है कि वो अपने गोल में, अपने स्कोर में बढ़ोतरी करते हैं या एक चांस दे देते हैं अपने दूसरे टीम को, अपने अगेंस्ट टीम को। देखिए, मैंने जिस तरह से कहा था कि देखिए ढलाई एंटलर्स जिस तरह से यहाँ पर प्रेशर बना के रखिए ना, वो प्रेशर अभी भी मौजूद है और इसे उभर नहीं पा रहे हैं खोवाई वॉरियर्स। इनको उभरना है और उसको गोल को दागना है वहां पर। अभी एक अच्छी कोशिश थी वहां पर गोलकीपर की, चूक गए, लेकिन अच्छी कोशिश थी। अब देखिए फिर से वहीं पे, चलिए अच्छी गोल, रोके वहां पर, रफ्तार अच्छी, लेकिन घास तो नहीं है, फिर वही जगह गिरे। अब देखते हैं, शायद ये येलो कार्ड 13 नंबर के जर्सी को, ये शुभ संकेत नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऐसा होता रहा तो नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। रजनीकांत त्रिपुरा जिनको येलो कार्ड अभी दिया गया है, तो ये चीजें शुभ संकेत नहीं है। कल भी एक प्लेयर ने कुमलुंग में जर्सी उतारा था गोल के बाद, जिनको येलो कार्ड मिला था। तो फीफा के ये कुछ नियम्स हैं, आप गोल करने के बाद अपना टी शर्ट नहीं उतार सकते, उसमें आपको येलो कार्ड मिल जाएगा। तो अच्छी शॉट यहाँ पर, पूरी गोल डी बॉक्स के अंदर, अच्छी हेडर की कोशिश, यहाँ पर देखना क्या होता है। जी हाँ, बिल्कुल खींच दिए वो 15 नंबर के जर्सी। अच्छी शॉट यहाँ पर, देखते हैं ले पाते कि उसका फायदा। बहुत अच्छी शॉट फिर से खोवाई के द्वारा, अच्छा शूज का इस्तेमाल यहाँ पर, रोके हल्का सा उठा के दिए हैं अपने प्लेयर्स को। अच्छी हेडर, काम पे लगाइए इसको, छोटे कद के 11 नंबर के खिलाड़ी। अच्छी पास यहाँ पर, देखिए ये है अपने लेफ्ट विंग से अच्छी पास यहाँ पर खींच दिए हैं, लेके जा रहे हैं इनको 20 नंबर के खिलाड़ी है। अच्छी लंबी शॉट यहाँ पर, देखते हैं हेडर या पांव से, ऑफ साइड का इशारा। आप घुस गए, आप घुस गए वहां से। एक येलो कार्ड, यूं तो ये जो कार्ड्स हैं ये कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज ही है पूरी टीम के लिए, क्योंकि जब हम पहले टीम के प्लेयर्स को हम मैदान में उतरवाते हैं, जो कोच उतरवाते हैं, जो टीम को प्लेयर्स को लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक बार फिर से आउटलाइन के बाहर बॉल, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अच्छे प्लेयर्स, बेहतरीन प्लेयर्स, तो हम देख पाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अगर एक भी गोल दूसरे टीम के द्वारा दिया जाए, और एक भी गोल अगर दूसरे टीम के द्वारा दिया गया है तो
कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक मोटिवेशन नहीं आता है कि यार कैसे करें, अब तो टाई अप करना है या बढ़ोतरी लेनी है, और ये दे दिया है ढलाई एंटलर्स ने। साथ ही साथ एक येलो कार्ड मिलना, दैट मीन्स पूरे टीम में एक दबाव बन जाता है कि यार हमारा वो टीम मेंबर येलो कार्ड ले रहा है, नहीं, हम चाहते हैं कि वो टीम मेंबर हमारे साथ रहे। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ढलाई एंटलर्स या तो आगे जाएंगे या खोआई वॉरियर्स उनको टक्कर देंगे, या आज के इस फर्स्ट हाफ में वी विल सी समथिंग मोर एक्साइटिंग एंड डिफरेंट। मिथुन जी, आज आउटलाइन के बाहर काफी बॉल जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इट इज लाइक दिस? देखिए सौरमिता, यहाँ पर मैदान जो है छोटा है, जिसके कारण से ये हो रहा है, और मैदान में आप देखिए समानता नहीं है, और जहाँ पर प्लेयर को दौड़ने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप सपाट जो मैदान होते हैं उस पर आपकी दौड़ जो है अच्छी रहती है, आप उसमें स्लिप नहीं करते, तो मैदान भी नहीं। लेकिन आशावादी हैं हम कि जिस तरह से फुटबॉल को प्रोत्साहन मिल रहा है TTAADC के द्वारा, वो आगे चल के एक अच्छी मैदान के रूप में इसका शक्ल बदलेगा और एक नए रूप में ये मैदान आएगा 82 माइल का। तो अच्छी कोशिश अब तक अभी अटैकिंग पे जो खोआई वॉरियर्स है, क्योंकि आशा है कि पोहर और बुआर दब्बरमा कुछ करेंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि उनमें क्षमता है अपनी टीम को आगे ले जाने में। क्या बोलेंगे मिल्टन जी आप? Yes, Mithun, actually, it is really nice to see the players from the Dalai Antlers doing really well in the home ground, and it's really awesome that they've been dominating the match totally today, this afternoon. But the Kauai Warriors really need to work hard today, because they have also lost their previous match, and they need to work really, really hard this time to make some points at least by winning this game. And I'm sure that the Kauai Warriors are playing really well to make up their points this time. So basically, they have such a wonderful coach as Ajit Debarma, and the captain as Ronaldo Debarma, whose name actually also refers to an international player as the captain. And also let's listen to the Dollar Antlers captain Stephen Paul Darlung, and the team coach is Hriday Tripura, who's also really a good coach from Tripura. So these people are taking in charge and helping the players to really come up in the days to come. It's awesome to see these players leading the team and helping the youngsters grow up in the match like the football tournament in TSL. And again, there goes another yellow card for the match, which is not really a good sign for the team. I think the players really need to take care as they play in between the players to not so the yellow card is being provided to Shantajoy Riyang from Dalai Antlers. And so I guess the weather is looking much beautiful now because the sunshine has come up again. I'm sure there won't be any difficulties in seeing the ball, and there will be much better play after this. I'm sure there's only another few minutes, probably another 10 to 20 minutes or so for the first half to go off and take a break. But this is a free kick, and luckily they saved the ball. And there is no player towards the Kauai Warriors. What a players they've been playing. You can see them, they're very young and so energetic that we can still see their zeal for the match like this. And yeah, we can see more new players coming up for the days to come, and maybe they will be selected for better matches for the state and also into the national level. What say, Soromita?
डेफिनेटली इट्स एक्चुअली ट्रू। हम देख पा रहे हैं यहाँ एक और एक चीज़ मैंने नोटिस की है मिल्टन जी, दैट इज खोवाई वॉरियर्स जब से ये गोल बना है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट जब ये गोल बना था, वेरी फर्स्ट जब कुछ मिनटों में ये गोल बना था, तो यहाँ तब से लेके अब तक द एनर्जी दे आर गिविंग इन दिस पर्टिकुलर मैच, साथ ही साथ जो एग्रेसिवनेस, जो एग्रेसिव एक नेचर उनका दिखा रहे हैं प्रत्येक प्लेयर कि अब गोल चाहिए एनी हाउ, हमें गोल चाहिए इन दिस फर्स्ट हाफ, वो मुझे थोड़ा सा प्रभावित कर रहा है कि नहीं मुझे अच्छा करना ही है, एनी हाउ आई हैव टू डू बेटर। एंड यहाँ हम देख पा रहे हैं पूरी टीम लगातार ट्राई कर रही है, पर एक चीज है जो दोनों में कॉमन हो रही है कि गोल से थोड़ा बाहर, आउटलाइन के बाहर बार बार बॉल चला जा रहा है, तो यहाँ पासेस थोड़ी ठीक से होनी चाहिए। पासेस अगर हमारे प्लेयर्स के बीच में ठीक से रहे, एक अंडरस्टैंडिंग ठीक से रहे, तो शायद ये गोल डायरेक्टली गोल होगा एंड स्कोर बनेगा। Absolutely, absolutely. Actually, because of the playground out here, the playground seems to be a little smaller than the usual. So the players actually, kick the ball really hard, and they seem to be really energetic and strong. And so that is the reason why even if they kick it, and the ball actually passes the middle ground and goes towards the defender or the offender's team. So let's see who can make the next score. But Kauai Warriors really need to make the first score this time. They need to work harder and push the ball into the box and see what happens after the break. But before that, they really need to make pressure for the Dalai Antlers. What say Mithun? मिल्टन जी बिल्कुल आपने सही फरमाया है। देखिए कल हमने जो मैच देखा है, कल जो मैच हुआ सिपाही जला टाइगर्स और ओनुकुटी का, उसमें देखिए जो फर्स्ट हाफ से पहले जो सिपाही जला का जो अटैकिंग था वो कितना अच्छा था, और ओनुकुटी का उसके बाद फर्स्ट हाफ के बाद। तो आज ऐसे ही प्रदर्शन यहाँ पर होना चाहिए दोनों टीमें। देखिए अभी भी एवरेज, देखिए सीधा गोल दाग दिए हैं, लेकिन बहुत दूर से मारा है, जो लेट लतीफी हो गई यहाँ पर, और गोलकीपर के पास बहुत ही धीमा सा गया है। ये शॉट ऊपर उठ सकता था या पास भी दे सकते थे, लेकिन अच्छी कोशिश, क्योंकि इनके झोले में बहरहाल एक गोल पहले से भी है, तो कोशिश तो जारी है। तो अब देखना है यहाँ पर एवरेज किसकी अच्छी है। अब तक एवरेज है 65 to 70% जो एवरेज है वो धौलाई एंटलर्स के पास ही जाता है, कि अटैकिंग इनका ही रहा है, हर एक मौके को लिए है। ये जो आसमानी वाला कलर का जर्सी पहना है ना, पूरा आसमान आज उड़ेल के जाएंगे यहाँ पर, और पूरी कोशिश उन बादलों की तरह बिखेर के जाएंगे यहाँ पर, उड़ते पवन की तरह दिखा दिए हैं आज मैदान पर। और काफी देर मैच चल चुका है, अभी 1-0 पर है। जो दर्शक है वो चाहते हैं कि ख्वाई वॉरियर्स के झोली में भी एक गोल जाए, क्यों सरो? बिल्कुल बिल्कुल मिथुन जी, आपके शब्द, क्या बात, आपके शब्द ने मेरे अंदर मोटिवेशन दे दिया है कि मैं अभी जाके उनको और मोटिवेट करूं। बट नो डाउट योर वर्ड्स आर सुपर्ब। एंड जैसे कि हम जानते हैं द ग्रुप बी मैचेस, इस ग्रुप बी मैचेस में आज हमारा 4th मैच है। इसके पहले ग्रुप बी मैचेस हुआ था अलग अलग जगहों में, जहां लास्ट मैच हुआ था किल्ला में, एवं वहां भी हमने देखा था वहां का जो फील्ड है, वहां का जो मैदान है काफी बेहतरीन था, यहाँ से थोड़ा बड़ा था, यहाँ से अच्छा था। और वहां के भी आप दर्शकगण, शायद आपको याद होगा, वहां के भी बहुत बेहतरीन दर्शकगण हमारे साथ जुड़े थे, जो अपने फेवरेट टीम्स को बहुत ज्यादा चेयरअप कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। एवं आज भी हमारे साथ अमेजिंग ऑडियंस है, एंड वुड लाइक टू थैंक देम, थैंक यू वंस अगेन। एंड एक बार हम देख सकते हैं शायद फिर से एक इंजरी, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों मिल्टन जी, आप जानते हैं ऑलरेडी कि किस तरह से एक भी इंजरी कितना हानिकारक हो सकता है फॉर द टीम। Yes, so Romita, actually, when a player in the team is injured, it's really difficult to, regain back such a team again, because there is a team spirit in the team, and they really have a proper combination at this point of time. We see that one of the players has been injured, and it's difficult for them to come back with that same kind of a spirit. And so let us see what happens if the player needs to be replaced. But I guess the player has woken up, and probably the match team is working on them, and they would be, trying to take him in again. But I guess there is a requirement for a replacement in the player, or he might need to take rest for a while. Until then, I would also like to request the audience to still stay far away from the outline, because then if the ball hits them, it's going to be really difficult
for the people in the audience to be, you know, and so the Dalai Antlers taking charge, and I'm sure that the Kauai Warriors also doing really well, and so that you know they can win the game today. But in the previous match, we have seen that they have you know failed to do so and are unable to show such performance. Today, the Kauai Warriors really need to show up and need to grow and you know make that combination, make proper communication between them and play together so that they can win the game here at Birasi Mile ground. And so yeah, Mithun, let me ask you something. What kind of development have you seen from the players of Kauai Warriors so far? Because then it's difficult for them to win if they have not changed any of their strategy from the previous game. मिल्टन जी देखिए, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो इसमें मेरे को कोऑर्डिनेशन की कमी लग रही है कि पासेस अच्छे नहीं बन रहे। 11 नंबर के खिलाड़ी हैं धलाई एंटलर्स के डेविड रियांग, जो लेफ्ट विंग से खेलते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस अभी तक इनकी, लेफ्ट विंग को बिल्कुल संभाल के रखे हैं। यही प्रदर्शन चाहिए उनको, क्वाई वॉरियर्स को। क्वाई वॉरियर्स अगर पासेस अच्छे देंगे, देखिए अटैकिंग देखिए आप, जितने वो अटैकिंग हो रहा है वो सब क्वाई वॉरियर्स के गोल पोस्ट की तरफ हो रहा है। इस तरफ आप देखिए, इसका परसेंटेज आप कितना देंगे, आप इसको 20%, 25%। उस तरफ का परसेंटेज देखिए आप 70%। तो फिर आप इससे साफ हो जाता है कि कौन ज्यादा भारी है, कौन किस पे ज्यादा भारी है। यहाँ पर एक एक जो मेहनत है, ये क्वाई धलाई एंटलर्स का पहला मैच है और पहले मैच में इतना उच्च कोटि का प्रदर्शन, ये आगे चलकर बाकी टीमों के लिए एक क्या कहते हैं उसको, मजबूरी का कारण बन जाएगा, सोचने का कारण बन जाएगा। क्योंकि हमने जितने मैचेस देखे, देखिए फिर से वहां पर देखिए डिफेंड देखिए, आने नहीं देते, विंग्स खोल देते अपना बिल्कुल दोनों हाथ, क्या आप नहीं जा सकते अंदर अपने गोल पोस्ट तक, वो सुरक्षित गोलकीपर को मतलब एकदम बचाते हुए कि कोई चांस नहीं दे रहे हैं खुआई को। और फिर से देखिए यहाँ पर थोड़ी सी शायद लग गई, जहां फ्री किक मिली है यहाँ पर देवज्योति चक्रवर्ती, जो सर जो नेशनल मैच के रेफरी रह चुके हैं इंडिया में, बहुत ही महानुभावी रेफरी हैं। और बाकी जो हमारे 2 रेफरी हैं हमारे साइड लाइन में, वो भी काफी महानुभावी हैं। अभी तक जितने भी डिसीजन लिए परफेक्टली, 20 नंबर के जर्सी सीधा खेल दिए हैं, अच्छी हेडर यहाँ पर, फिर से अच्छी हेड यहाँ पर। देखिए ढलाई एंटलर्स कितनी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों शोरोमिता? बिल्कुल बिल्कुल, हम जैसे जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये जो कोशिश है, ये एक ही तरफ से हमें ज्यादा मिल रहा है, जो कि मिथुन जी आपने कहा कि 20% एंड 80%, ये जो गेम चल रहा है लगभग ऐसा ही चल रहा है फिलहाल के लिए। प्रोबेबिलिटी ऐसी लग रही है कि एंटलर्स बहुत जोशीले हैं एंड एंटलर्स की तरफ से ये कोशिश ज्यादा है, दैट्स व्हाई उनकी तरफ से हमें इंजरीज भी ज्यादा मिल रही हैं, हमारे प्लेयर्स जल्दी इंजर्ड हो रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट की थोड़ा ध्यान से, क्योंकि आपके टीम के एक प्लेयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक टीम की जो प्लेयर्स होते हैं काफी गिन चुन के हम रहते हैं, जो पहले मैदान में उतरते हैं और जीतने के लिए ही उतरते हैं हर कोई। तो एक बेहतरीन कोशिश एक बार फिर से, एंड ये कोशिश बरकरार अगर रही तो मिथुन जी आई एम वेरी डाउटफुल कि फर्स्ट हाफ में एक गोल तो हो ही जाएगा, पर अगर एक और गोल हो गया तो खोआई वॉरियर्स शायद बड़े टेंशन में आ जाएंगे, एक अलग प्रेशर उनको मिल जाएगा कि अब तो करना ही है। देखिए आप प्रेशर की बात कर रही है, यहाँ प्रेशर झलकना भी चाहिए। आपके अंदर का प्रेशर है तो मेरे को ये हाफ टाइम के बाद दिखेगा, क्योंकि आप देखने लायक है नहीं, कोच से आप परामर्श कर नहीं सकते, बाहर जाना पड़ेगा। कोच आपका या तो टीम प्लेयर को गिने चुने इन आउट करेंगे और आप उसमें कुछ अपना जो मंतव्य है वो देंगे उनको। तो अब तक तो फिलहाल जो है उनका अटैकिंग मुझे उतना ठीक ठाक नहीं लगा, लेकिन धलाई एंटलर्स का काबिले तारीफ जज्बा काफी हाई, अटैकिंग काफी हाई, प्लेयर के जो पासेस हैं बहुत अच्छे। अब तक लेखा जोखा जो है वो एंटलर्स को जाता है, धलाई को। ख्वाई को मैं उतना चांसेस दूंगा नहीं कि ख्वाई अभी तक जितने भी कुछ कर रहा है उतना खासा प्रभाव डाल नहीं पा रहा है अपने टीम के लिए।
मैं कुछ खास सहमत नहीं हूं मिथुन जी, क्योंकि जहां जहां तक मैं देख पा रही हूं खोवाई वॉरियर्स को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, उनके चेहरे पर अब भी एक होप है कि दे विल डू ग्रेट। और जहां तक मैं देख पा रही हूं, द काउंटर अटैक, जितने बार भी एंटलर्स एक गोल करने की कोशिश करते हैं, काउंटर अटैक उनका रहता है कि नहीं, हमें गोल एटलीस्ट नहीं होने देना है। तो अभी तक इसी कारणवश एक ही गोल हो पाया है एंटलर्स का। और क्योंकि खोवाई वॉरियर्स एक मैच ऑलरेडी हार चुके हैं, तो ये एक प्रेशर उनके अंदर है कि हाँ, आज का मैच उनको जीतना है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि एक लॉन्ग शॉट के द्वारा अब फिर से एंटलर्स के पास ही बॉल चला गया। खोवाई वॉरियर्स ट्राई कर रहे हैं, जरूर ट्राई कर रहे हैं, पर वो ट्रायल हो नहीं रहा है, वो जो कोशिश है वो दिखाई नहीं दे पा रही है। देखिए सौरभ, जब तक ये डेविड रियांग वहां पर मौजूद है ना, ये लाइव ट्विन में, आप यकीन मानिए ये बॉल को यहाँ से वो ऐसा लगता है मधुमक्खी देखिए आपने छाते पे, आप उसमें मार के देखिएगा, उसका झुंड एक साथ आ जाता है। इसी तरह से ये एटलर्स है, मधुमक्खी की झुंड कह लीजिए, एक साथ रफ्तार में आगे बढ़ते हैं और इसका काफी आगे बढ़ रहे। क्यों मिल्टन जी, क्या कहना है आपको? Absolutely, absolutely. The Dalai Antlers really pushing towards the Khoi Warriors. Khoi Warriors actually needs to work harder and communicate between the players, because as we see today's match, we see that the Dalai Antlers really doing well and pushing the ball really hard towards the goal post. But Khoi Warriors, needless to say, you need to work harder. And looking at the kind of field that you are playing in today, you should actually make through and be possible to make your first score in the first half itself. Let's see what happens. But there's been a call for ball, and so it's a throw in for the Khoi Warriors now. This can be a dangerous portion for them, where the Khoi Warriors have the opportunity to actually make the first score this time, but they lost their opportunity and the ball is back to the Antlers, but shot it well and it's over the goal post now. यहाँ हम देख पा रहे हैं कि खोवाई वॉरियर्स थोड़े टेंशन में अब दिख रहे हैं, क्योंकि अभी पता चल गया है फर्स्ट हाफ का लगभग अंतिम समय में हम आ गए हैं, अब तो होना पड़ेगा गोल। एंड जहां तक मैं देख पा रही हूं, काउंटर अटैक और डिफेंस उनका काफी बेहतरीन है, पर एक चीज आई नोटिस मिथुन जी, कि यहाँ पासेस, जो टीम मेंबर्स के बीच में जो पासेस हो रहे हैं, प्लेयर्स के बीच में जो पासेस हो रहे हैं, वो शायद खोवाई वॉरियर्स के द्वारा सही से नहीं हो पा रहे, जिस कारणवश ये गोल नहीं हो पा रहा है। अब अगर एंड यहां सजग हमारे गोलकीपर, जिस कारणवश ये गोल बच गया। क्या बात, एंटलर्स के गोलकीपर फुल्ली रेडी, फुल्ली एक्टिव। जो भूल की थी हमारे खोवाई वॉरियर्स के गोलकीपर ने कि थोड़ी से चूक के कारण एक गोल वो हो गया, और अभी फिलहाल लाल संघ हिमा जी को उनकी टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं हम कि उनके कारणवश ही शायद इतने बेहतरीन तरह से गोल बचा है। तो अब हम लेते हैं एक ब्रेक। Faringkai, sing tabu brego thanglai khaba. O brego no sing kaisa hodagri musamung sing nai na lekranai. Nungo na hai nai orani charerono, orani school ni charerono. Faringkai sing tabu nai kaisa hodagri musamung sini charerono bakakti kai.
bela bela ke hambai sino naito toke musai phunugi klang ma bage phari ke sing tai kaisa musamong nai mani yaglon sini tinini football tournament tai chain hai chengir leifene ang koina hanai next team jara musanai hini phaijar rono borno buskang phai musai phunga bage Icon Shin Anita Pug. Hey,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार फिर से हम धन्यवाद देना चाहते हैं TTAADC को, जिनके कारणवश आज ये जो संगीत है, संगीत में जो ये संस्कृति है एक साथ जुड़ रही है, खेल के मैदान में एक साथ जुड़ रही है। एंड वी विल रिज्यूम द गेम, पर इसके पहले चलिए हमारे दर्शकगण के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं हमारी तरफ से। हमारा तो मानना है कि आज का ये गेम बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, पर डेफिनेटली हम हमारे दर्शकगण से जानेंगे कि उनका क्या मानना है। बट इसके पहले हम चलते हैं, हमारे गेम को रिज्यूम करते हैं। हम सब जानते हैं वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम। ओके, सो यहाँ हमारा सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है। सेकेंड हाफ में अब हमें देखना है, क्योंकि ऑलरेडी धलाई एंटलर्स का एक गोल हो चुका है, स्कोर हो चुका है, पर अब देखना है कि खोवाई वॉरियर्स के अंदर वो अंदर से जो कह सकते हैं कि वो आगून, हमारे बंगाली में कहते हैं हम, वो आगून आया कि नहीं आया, वो आग लगी कि दिया है। एंड जहां तक हम देख सकते हैं काउंटर अटैक जब होता है, डिफेंस जब एक रहता है तो एक रहता है कि हाँ मैं उनको करने ना दूं, पर उनकी तरफ से एक ही चीज की मेरी तरफ से लग रहा है मुझे कि भूल हो रही है कि उनका जो पासेस वो दे रहे हैं, बॉल्स के जो पासेस वो दे रहे हैं, वो शायद थोड़े टीम वर्क को चाहिए, थोड़ा उनको स्ट्रेटेजी चाहिए किस तरह से वो पासेस दे, क्योंकि जब बॉल इधर आता है उसी टाइम वो जो पासेस देने की बारी होती है तो उनके प्लेयर्स उसके आसपास नहीं होते हैं। तो गोलकीपर की नो डाउट गोलकीपर बहुत काफी बेहतरीन तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं, एक्टिव है हमारे दोनों ही गोलकीपर। थोड़ी भूल होती ही है और एक गोल हो सकता है, ये उनको पता है। तो हम चलते हैं मिठुन जी के पास, उनसे जानते हैं कि अब उनको क्या लग रहा है सेकंड हाफ में क्या हो सकता है। मिठुन जी, देखिए सब कुछ रणनीति के ऊपर है, क्या रणनीति अपना के आई है बाहर से खोवाई वॉरियर्स, ये देखना है क्योंकि उनके कोच ने कुछ तो बताया होगा, कुछ इन आउट का मसला तो होगा, कोच ने सिखा के भेजा होगा। देखते हैं, पूरे अभी आधा मैच बचा हुआ है, कुछ चेंजेस करते हैं कि नहीं खोवाई वॉरियर्स अपने खेल में, क्योंकि उनको सारी वो चीजें, क्योंकि पहले भी वो मैच जो है वो हारी हुई है, चाहेंगे कि आज वो मैच ना हारे और अपने इस स्तंभ को वो एक गोल के साथ आगे ले जाए, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तू हिम्मत ना हार, क्योंकि आज हिम्मत हार गए तो आपके पॉइंट टेबल में आप नीचे आ जाएंगे। तो आपको मेहनत करनी है। जिस तरह से एंटलर्स ने पूरी अपनी फौज के साथ धाबा बोला है आपके ऊपर, तो काफी सकारात्मक प्रभाव डाला है अपनी टीम का, लेकिन नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर डाला है। क्या कहेंगे सौरमिता इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी सिर्फ और सिर्फ रणनीति की बात है, स्ट्रेटेजी की बात है, अपने टीम वर्क की बात है। अब तो शोकेस करना ही है, क्योंकि अब है हमारे पास बहुत कम समय। और अब मिथुन जी, मैं एक्चुअली जानना चाहती थी, क्योंकि हमारे पास देखिए आप आज देख सकते हैं हमारे स्टेडियम के आसपास सिर्फ बेहतरीन ऑडियंस है, इतने अमेजिंग दर्शकगण जो तब से चेयर अप कर रहे हैं, हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया, होकर रहेगा। तो उनमें से चलिए एक के पास हम चलते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटेजीज काम आ रही है, उनको कैसा लग रहा है आज इस फील्ड में आके, इस मैदान में आके। मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी बहन, मैं उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, प्लीज आप जुड़ जाएं हमारे साथ। स्कूल ड्रेस में है तो पता ही चल रहा है, आप देख सकते हैं कितना जुनून है कि स्कूल के स्टूडेंट्स भी फुटबॉल को इतना प्यार दे रहे हैं, एवं जब फीमेल इतना प्यार देती है तो वो अलग बात है। तो आपका नाम जान सकते हैं? रिया जी। रिया जी, आप कौन से स्कूल में आप बता दीजिए, क्योंकि यहाँ नॉर्मली आपका आईडी कार्ड वहां तक दिख नहीं पा रहा है। तो आज आप किसको सपोर्ट कर रही हैं रिया जी? ऑफ
कोर्स धौलाई एंटलर्स को। तो धौलाई एंटलर्स ऑलमोस्ट जीतने वाले हैं और उनकी तरफ से भी उन्हीं को सपोर्ट है। तो आशा करते हैं आप आज जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो जीते। बट नो डाउट वी लाइक टू विश ऑल द बेस्ट टू आवर अनदर टीम खोवाई वॉरियर्स। साथ ही साथ जानना चाहते हैं कैसा लग रहा है आज आपको, क्योंकि ये लाइव देख रहे हैं। नॉर्मली हम फोन में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, लाइव आज देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रिया जी। हम आगे चलेंगे और भी हमारे दर्शकगण से बातें करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी आज के इस मैच में। पर अभी के लिए आप देख सकते हैं बॉल आप देख रहे हैं, बॉल अच्छी तरह से पास हो रहे हैं यहाँ हमारे प्लेयर्स के द्वारा। सेम हमारे वॉरियर्स फुल्ली रेडी है क्योंकि उनका ना डिफेंस काफी बेहतरीन है, वो डिफेंस कर रहे हैं। पर सभी प्लेयर्स ऑलरेडी एक ही जगह में हैं। उनको शायद ये ध्यान में देना चाहिए कि अगर उनके साइड में 2 प्लेयर्स या 3 प्लेयर्स रहेंगे तो उनके पासेस जल्दी जाएंगे और जल्दी एक गोल हो सकता है। तो हम चलते हैं मिथुन जी की ओर। मिथुन जी, क्या लगता है आपको अब क्या हो सकता है? क्या रणनीति बनाएंगे हमारे वॉरियर्स ताकि एक गोल एटलीस्ट उनका दर्ज हो? देखिए, मैंने जब पहले भी कहा था कि खोवाई ने पहले रणनीति बाहर से लेके आई है। अब ये देखना उस रणनीति को उसके जो कोचेस ने बताया उनको तो काम पे लगा पाते हैं कि नहीं। लेकिन धौलाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, धौलाई अभी भी बहुत ज्यादा हावी है खोवाई वॉरियर्स पे। अगर इस तरह से हावी रहा तो ये कुछ अटपटा सा हो जाएगा मैच में, क्योंकि वहां पर जो बॉलिंग 11 नंबर का खिलाड़ी है ना, उसने काफी ज्यादा प्रभाव डाला है। अभी पहले राइट विंग में था, अभी लेफ्ट विंग में है, क्योंकि गोल चेंज हो गए हैं। तो जब गोल पोस्ट चेंज हो जाते हैं तो फिर थोड़ा मसला उधर उधर हो सकता है कि लक भी देखना थोड़ा फेवर करता है कि नहीं। अच्छी बैक किक यहाँ पर, बॉल ऊपर की तरफ, 10 नंबर का खिलाड़ी एंटलर्स का, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अच्छी रफ्तार। खोवाई को रणनीति की जरूरत, अच्छी पासेस की जरूरत, डिफेंस अच्छा होना चाहिए, स्ट्राइक अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ के देखिए, छीन लिया फिर से गेंद। मैं यही कह रहा था, प्रभाव देखिए एंटलर्स ने काफी, देखिए शॉर्ट छोटे छोटे पासेस 10 नंबर के खिलाड़ी के पास, और ये अच्छा पास निकालने की कोशिश, लेकिन वहां पर पैर पे लग गया खोवाई वॉरियर्स के प्लेयर के और बॉल बाहर चली गई है। लेकिन अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर आज मुझे गोलकीपर का भी देखने को मिला, जो दोनों टीमों का ही गोलकीपर है। अच्छी रोके हैं, बाय द वे एक गोल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी प्रदर्शन जो होना चाहिए गोलकीपर के द्वारा वो अच्छी रही। एंटलर्स के गोलकीपर ने काफी अच्छी कोशिश की यहाँ पर बहुत बार, जिसके कारण से बहुत सारे गोल को रोका गया है। लेकिन वही है बात कि कोशिश करनी चाहिए आपको, क्योंकि पहले भी आप मैच में हार चुके हैं, चाहेंगे कि अब जीत हासिल हो। चलिए थ्रो इन। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोशिश जरूर होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं कि हम आगे बढ़ ना पाए, पर वो कोशिश रहनी चाहिए आगे बढ़ने की। कभी तो आगे बढ़ेंगे, वो जज्बा जरूर रहना चाहिए। और हम जानते हैं कि हर बार ट्राई कर रहे हैं हमारे वॉरियर्स, हमारे खोवाई वॉरियर्स की अब वो एक गोल ले। उनकी तरफ से काउंटर अटैक मैं देख पा रही हूं, पर जैसा कि मैंने बार बार कहा, थोड़ी चूक, थोड़ी स्ट्रेटजी और उनको लगानी है ताकि उनके पासेस सही हो। सो दैट यहाँ मैं देख पा रही हूँ हमारे खोवाई वॉरियर्स में जर्सी नंबर 11 जॉय किशन देवबर्मा जी, तब से ही ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। उनकी तरफ से एक बहुत बेहतरीन हम देख पा रहे हैं डिफेंस। बहुत देर से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि जर्सी नंबर 11 वो पूरी तरह से शिद्दत से ट्राई कर रहे हैं कि उनका जो डिफेंस हो वो बेहतरीन हो, पर वो डिफेंस उनको बेहतरीन तरीके से लगाना है। एवं यहाँ फिर से आउटलाइन के बाहर बॉल, अब शायद गोल हो सकता था। यहाँ काफी बार चूक जा रहे हैं, पर एंटलर्स को आप देख पा रहे हैं थम नहीं रहे हैं, वे थम नहीं रहे हैं। पूरी टीम ने जज्बा से ये ठान रखा है कि आज तो उनको शायद 2-0 में ही हराना है वॉरियर्स को। क्यों मिल्टन जी? Yes, Zormita, actually the Dollar Antlers really doing well today, performing really well in this afternoon, and they've been doing really great. Oros Hananiklayo, Dollar Antlers of Tini Bele kick, Night of Clay, Borotang, Abahikeno, Koi Warriors of whatever Kahamkatan, Tamni, Borok, Sekango, Payang, Hangmani. Tewi se borok hai kipili borok paina ni bakago thangan nango borok all the second half ni je match borok jeske pono paina ni nangnai tai borok score khlai borok points ni sanangnai piaba jori tini points ni se me yang kai borok buni se belai ke uplugono klai thangnai abani bagai khwai warriors rok belai ke tabok nai kini khai borok thangna nangnai
बेलाइखे साइटुगि तंलायो बरक खरसा ताइ खरसा पास खालायले गाहाम गाहाम केनो बरक बल पास खालायले तो चिकन चिकन पास खालायो साइटुगि तंलायो बाहायके गोल स्कोर खालायनानै फियाबा दलाई एंटलर्स रक बेलाइखे स्ट्रंग माबाय बरनि होम ग्राउंड अफ बरनि एरिया अफ माबाय बरनि जे प्लेग्राउंड अफ जथेस्ट सिनिवो ताइ आबा हायकेनो बेलाइखे थुंकरं माबाय बरक बेलायनाय तो तकै थुंगि दङ Paringkai oro taise na hai match team nung jaka tamo klaiman nai lene oro player khorse injured jak tai our player no bhaike tam klaiman sini match team rok kharong lajak and aba haikeno all je 82 mile but 82 mile je playground tini je thungjagi tong belai khe nai to kaisa thungmung aba hai TTAADC ni initiative by clay om hai ke thungjagi tong mani belai belai ke sini sikla bosong rone bai belai ke kaham te aba hai ke no kubun sar go or ni je thungi tong nai ro ba je thung karung ro borok phatar haste ro go thungani jora kaham manai tai a shape sab ro no nana bakino or je tabu thung tong nai ro borok joto chai to lai tong sabun se sabu bisi kaham ke thungi phono go man tai tinini sanaklayo tinini senior referees rok je tongnai rok belaike kereng tai officials rok belaike kereng international platform rok thangi borok mathangi phaijak aba haikeno dolai antlers rok kaham kaham players rok tino borok tini thinglai tongo chikon sa matung thono matin bisingo borok belaike nai to klai thanglai tonglai Kwai Warriors rok taibo pressure marnai tamninke Tabuk, dollar antlers of me, time borok actually borok time pass line and ozaro naro judi time no naragamani hanke tini pai thano ni bagai naro ni belaike kutuk nahi ne angkha khayo abani bagai ang tabu ya fere nai sini mithun no bo bini tamo satai tong abano bo sana bagai जी बिल्कुल क्वाई वॉरियर्स का रोबी सिंह है वो प्लेयर जो है काफी अच्छी कोशिश की थी अभी करने के लिए गोल लेकिन बाकायदा उन्हें सफलता नहीं मिली लेकिन अगर वहां मौका जाता देखिए फिर से 11 नंबर का जर्सी ऑफ साइड हो गए नहीं यहाँ पर बोल रहे कि धक्का लगा है देखते हैं अभी इशारा क्या होता है इनका क्योंकि वो ज्योति सर अपना अनुभव यहाँ जाहिर करते हुए और मसलन यह है उम्र दराज होकर भी इनकी एक्टिवनेस आप देखेंगे ना तो अच्छे अच्छे नौजवान भी वहां हार मान जाएंगे यही रही अब तक तो आपका लेखा जो कहा लिया है कि वो देखिए फिर से वहां पर कुछ अनबन सी हो गई है तनातनी सी चल रही है दोनों टीमों के प्लेयर के बीच 16 नंबर के जर्सी बता रही है भाई साहब थोड़ा पीछे चले जाइए यहाँ नहीं रहना है आपको लंबा शॉट खेलेंगे यहाँ पर लंबा किक देखते कहां तक जाता है क्या सफलता मिलेगी जी आप बिल्कुल वहां पर कुछ और इशारा जी फिर से वहां पर तनातनी का माहौल बनता हुआ सोरुमिता ये जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है क्योंकि देखिए समय का एक बैरियर होता है इसमें आपको मिलते हैं 90 मिनट्स और इसमें अभी इस चीज में उलझ के रह जाएंगे तो गेम की जो मेंटेलिटी आप बना के आया ना उससे भी मोटिवेशन कहीं इधर उधर हिल जाता है तो आपको खेल पे फोकस करना है क्योंकि आप ऑलरेडी आपको गोल करना है अभी तो ये सब चीजें दूर रख के अभी आपको फोकस रखना है कि एक गोल करे ड्रॉ करे या मैच को आगे ले जाए क्या बोलेंगे आप बिल्कुल बिल्कुल मिथुन जी एवं मिथुन जी की बात भी एकदम सही है एवं मिल्टन जी ने जो कहा है कि अभी जो हमारे वॉरियर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर है क्योंकि एंटलर्स चाहते हैं या तो उनका गोल हो या टाइम पास हो अभी अगर वो टाइम पास हो गया तब भी उनका फायदा और गोल हो गया तब भी उनका फायदा ये उनको स्कोर बोर्ड में उनकी जो टीम है उसको आगे लेकर चला जाएगा पर यहाँ एक प्रेशर क्वाई वॉरियर्स की तरफ बहुत पहले से ही मैंने जब कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और एंटलर्स पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और उनके लिए डेफिनेटली 2 लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगी कि काबिलियत इतनी रखो कि तुम्हें हारने के लिए कोशिश नहीं साजिश रचनी पड़ जाए और यूं तो साजिश नहीं यहाँ थोड़ी अनबन हमारे प्लेयर्स के द्वारा शायद लोग यहाँ एक येलो कार्ड और मिथुन जी जैसा कि आपने कहा था ये सही नहीं है ये सही नहीं है देखिए मैं पहले कहा देखिए येलो कार्ड तो आना ही था जिस तरह से उन्होंने धक्का दिया ना काफी दूर गिरे लेकिन ये धक्का मुक्की होती है लेकिन नॉर्मली आपको खेल को नॉर्मली लेके जाना है तो ये आपस में ये सब चीजें नहीं करनी है अभी फोकस खेल पे होना चाहिए आप अगर एंग्री हो जाएंगे अभी तो कहीं ना कहीं आप दिशा भटक जाएंगे क्योंकि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता ये बड़े बड़े दिग्गज कह के गए हैं शांत होके ही
आपको आगे जाना है। जो एग्रेसिव का जो प्रभाव है ना अपने अंदर रखो और गेम को आगे लेकर जाओ। फुटबॉल पे दिखाओ, बॉल जो है उस पे दिखाओ, उस पे किक ऐसा मारो कि सीधा गोल पोस्ट को चीरता हुआ निकल जाए। नॉर्मल मत को अभी खेल पे ध्यान दो और खेल को आगे ले जाओ, क्योंकि आप एक गोल से पीछे हैं। अभी दोनों टीमें मदद करनी चाहिए, कोई पॉइंट्स के लिए खेले और कोई ड्रॉ करने के लिए। सौरभ और मिल्टन जी, मैं आपके पास दोबारा जाना चाहूंगा, क्या है आपका मंतव्य इस खेल को लेकर आगे का? Yes, Mithun, actually, the players really need to focus at this point of time because time is running out, and after the second half, it's really crucial for the Khoi Warriors. They need to make their first score at least. Otherwise, they're going to go 0 in hand, and they will not be able to pick up any points at this point of time. And in the days to come, it will be very difficult for them. And luckily, they saved the ball somehow. What an opportunity for the Dollar Antlers again. They could have scored another one, but yes, this time again it's a foul, and it's going to be a foul kick. The players actually trying to understand what exactly happened in the ground and trying to play with the ball, passing it to and fro. It's really awesome to see the players in the spirit and the esteem of the game is going higher, and a shot in the air, and the Dollar Antlers playing it really nice and cool, passing it through between the players. जैसा कि आपने कहा था मिथुन जी कि रियांग जी फुल्ली रेडी हैं। रियांग जी एक्चुअली ट्राई कर रहे हैं उनका बेहतरीन डिफेंस, पर यहाँ और एक चीज़ मैं यहाँ नोटिस कर रही हूँ तब से कि हमारे जो एंटलर्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट, द टीम इज़ वेरी स्मार्ट। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी तरफ से वो चाहते हैं कि गोल हो जाए, बहुत बेहतरीन कोशिश उनकी हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ वे चाहते हैं कि गोल ना हो तो उनका जो टाइम है वो सेव हो, टाइम जल्दी से पास हो जाए, सो दैट उनका जो गोल है उसी से ही वो जीत पाए। और एक चीज़ है, उनका ये जो एनर्जी है वो शायद एक दर्शा रहा है उनका एग्रेसिवनेस, जो वो चाहते हैं कि खोई वॉरियर्स वो एग्रेसिवनेस दिखाएं, सो दैट ये गेम थोड़ा और अनबन हो सके। यहाँ मैं देख पा रही हूँ धलाई ऑलरेडी फुल्ली रेडी है, एवं वो चाहते हैं कि कैसे ना कैसे टाइम जल्द से जल्द पास हो, कैसे भी करके, अब वो किसी तरह से भी हो वो पास हो टाइम। एंड ये जो जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं मैदान में अभी जो बॉल पासेस हो रहे हैं, काफ़ी धूल एवं इससे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी पड़ रहा है हमारे प्लेयर्स के द्वारा, हम देख पा रहे हैं। क्यों मिथुन जी? जी हाँ, बिल्कुल मौका चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी राइट विंग को संभाले एरोन रियांग एंटलर्स के, उनकी उसमें काबिलियत है कि अच्छे पास देते हैं, लॉन्ग पास भी ठीक ठाक देते हैं और छोटे पास भी, तो उनका फायदा उनको लेना चाहिए, तो उनके 2 गोल उनके खाते में आ जाएंगे। वहां पर जो संभाले हुए हैं खोई वॉरियर्स, तो उन्होंने जो संभाला हुआ है तो काम पे नहीं लगा पा रहे, जाते हैं गोल पोस्ट के पास। अच्छी जो इन लोगों के बीच में जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक चलिए प्लेयर चेंज हो गए यहाँ पर खोई वॉरियर्स, देखते हैं किसको चेंज किया गया है। और ये देखिए फिर से आ गया इसके पास, और एरोन रियांग के पास जब गेंद होती है ना भाई साहब, तो गेंद उनके पैरों से बातें करते हुए निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल मिथुन जी, देखिए अभी आप देखिए जरा किस तरह से उनके पैरों से ही खेला जा रहा है, उनके पैरों से ही उन्हें बातें की जा रही है बॉल के साथ। प्लेयर को चेंज किया जाएगा यहाँ पर। ये क्रूशियल मौका है क्योंकि अब प्लेयर चेंज, ये अच्छा भी हो सकता है मिथुन जी। जी सब्स्टिट्यूट अगर आप लेते हैं सब्स्टिट्यूट, ये सोच समझ के लिया गया डिसीजन है, क्योंकि कोच जो है सब्स्टिट्यूट इसलिए भेजता है क्योंकि वो जानता है कि वो जाएगा, उसको रणनीति पूरे देर से वो देख रहा है, रणनीति लेगा, अच्छा खेलेगा, गोल करेगा, टीम को जाके अच्छा पथ प्रदर्शक बनेगा। वो अच्छा भी हो सकता है या फिर थोड़ा चेंज भी हो सकता है। There's going to be a change in the player from the Khoi Warriors, and so the ref has given the signal out here. The referee needs to look into the matter. Sajora Deburma is going in, who is player number 25 jersey. Jersey number 25 is going to be exchanged by player number 12, who's come out of the game. Alex Deburma has been replaced by Sajora Deburma. And so this is really great at this point of time. The Khoi Warriors really looked into the matter and actually
thought of changing the strategy in the game. And so our hikeno sadra development or change play razaka tai our hike tabu khwai warriors ni bakhakti ke kaisa change in the plan and strategy or khlaijaka nai ne bahage tamung or player katal phaibani bising tike katal ke tai kaisa energy to we phajaka abani bagi nai ne sabotai sa or score climb mano tai aba hikeno khwai warriors or tabu the score climb man yang kai tini kintu porok 0 kai kipili matai. Oh, what a shot! But what an unfortunate or direct goal post half dia goal post ni sakate ke teisa ball uri thang tika. Hari gai nai le teisa ball ni bagai sahorta ka referee no yak tike or belai ke khela nai to klai muthangja gi tongo te aba hai keno tini ni je khela belai ke nai to dolai antlers of belai ke perform klai tongo tam nin ke overborni area te o area bor gabama jora romino kadungma jora romino bor thangi tongo aba hai keno dolai antlers ro tini goal score khai mali han pano bor time pass khai pano o game no tini par khai thangan bagai chai tok lai dong phia khwai warriors rock tini jesa khai pano bor kaisia score khai na ni nang nei no nang nei inya kai bor tini tewisan hai 0.3 ki filima thang pinai abane bagai phari ge teisa hai goal post bukha thaka or score khai na chances to mani phia goal angi manlia tai oro goalkeeper kick no gui manai ta buksen. जी बिल्कुल जो अगर ये सजोरा देवबर्मा जो इन हुए हैं अभी खोवाई वॉरियर्स के अगर रणनीति सही बनती है तो शायद अभी ड्रॉ भी हो सकता है क्योंकि खेल का औसतन ज्यादा समय अभी बचा नहीं है तो फिर भी हमें एक गोल तो देखना चाहिए खोवाई वॉरियर्स का प्रदर्शन पे लेकिन जिस तरह से एक्टिवनेस यहाँ पर एंटलर्स से दिखाया है तो एंटलर्स ने बिल्कुल जैसे एंट है मतलब चीटी है तो झुंड भी है एक तरफ सही नाम रखा है धलाई एंटलर्स क्योंकि एंट इनके अंदर है क्योंकि चींटियों की जो झुंड होती है ना वो एक साथ पूरे पहाड़ को भी ले से खींच सकती है वही चीज है इनमें यही बात है जो इस टीम को भी एक गोल से आगे लेके जाइए और आशावादी ये है कि आगे 1-2 गोल और ना दाग दे और भारी पड़ जाए खोवाई वॉरियर्स पे क्योंकि खोवाई वॉरियर्स पहले भी मैच हार चुकी है तो पॉइंट टेबल में काफी नीचे आ जाएगी सौरभ में जाके आ गएंगे आप बिल्कुल बिल्कुल पर वॉरियर्स को कम मत समझिए आप जानते हैं वॉरियर्स मीन समथिंग यू नो सो वॉरियर्स को कम मत समझिए हमारा ये फुटबॉल एक ऐसा मैच है लास्ट कुछ मिनटों में पूरा गेम चेंज हो सकता है और आप अच्छे से जानते हैं कि अभी सिर्फ गोल वन है और यहाँ प्लेयर चेंज हम देख पा रहे हैं 78 इन एंड 78 इन यहाँ और 18 आउट 78 आकाश जी अंदर जा रहे हैं मैदान के और 18 बाहर आ रहे हैं अमल जमातिया जी बाहर आ रहे हैं खोवाई वॉरियर्स से और जैसे कि हमने कहा था खोवाई वॉरियर्स अभी फुल्ली चाहते हैं कि अभी तो एक गोल हो ही जाए सो दैट एटलीस्ट टाई हो जाए पर मिल्टन जी हमने ऑलरेडी ऑडियंस से जान लिया है उनका वक्तव्य और जानते हैं ऑलरेडी बहुत सारे मैक्सिमम ऑडियंस ऑलरेडी आज एंटलेस को सपोर्ट कर रही है बहुत लोग हैं जो खोवाई वॉरियर्स को सपोर्ट कर रहे हैं लेट्स से कि हमारे ऑनरेबल डिग्निटरीज किसको आज सपोर्ट कर रहे हैं हाउ दे आर फीलिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेस And so it's time for us to, go ahead and ask a few questions from our dignitaries who are here this afternoon watching this beautiful match here at 82 miles. Probably this can be a score, but the Dollar Antlers really saved the ball. But, sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा. I'd like to know something. The Dollar Antlers have been doing really great so far. But what is your opinion that the Khwai Warriors need to do at this point of time, according to you? They need to keep attacking and convert their chances into. With regard to spirit of the football, I support both the teams, but dil to dhalai Antlers ke saath. Correct. And so, since they are in the 105 Battalion BSF, so they are here at Dalai and also a part of this Dalai district. So they are actually supporting the Dalai Antlers today. But also, we heard that they also have the heart for the Khwai Warriors because they actually need to make their first score in this game at this point of time. Otherwise, it's going to be a massive loss for the Khwai Warriors.
And so I'd like to ask you, sir, what about you? What is your opinion about the game here at 22 Mile here at Dalai today? It is a great game. Both teams doing very well. The participation in the sports is the main thing. And as per the present game is going on, approx I think 60 to 70% possession of ball in Dalai Antlers. And I am also with the Dalai Antlers. Great match. And so actually, since the match is here at Dalai district, there are a few supporters only from the Dalai, from the Kauai Warriors. But we are also, going to see more matches coming up, and more supporters from different, supporters will come in. And again, we can hear sir saying that he is also in support of Dalai today. But a very hard time for the Kauai Warriors today. It's very difficult time for them. They need to make the first score and at least make one equal, or they need to win the match today. Otherwise, it's going to be difficult for them to gain the point. And so let's get back to the match once again. Thank you so much, audience, for being such a wonderful audience here at 82 Miles. It's really awesome game here at Dalai, and it's between the Dalai Antlers and the Kauai Warriors. What a match today, and what a weather here at Dalai district today. And so we'd like to also talk to Mithun. Mithun, can you also tell us more about who among the players from the Kauai Warriors have been playing the awesome job today? Because I'm seeing so many players being hurt, but there are some of these strikers who are from the Kauai Warriors that are doing really good job. But what an unfortunate day for them. Can you go through a little bit? मिल्टन जी, बात यह है कि देखिए दो प्लेयर को आपने सब्स्टिट्यूट उतारा है. अगर वो अच्छा प्रदर्शन अभी भी नहीं कर पाते हैं तो फिर इससे ज्यादा आप कुछ उनसे हताश नहीं हो सकते इस चीज से, क्योंकि रणनीति के साथ ही दोनों को भेजा गया अंदर जो इन हुआ है. तो उनसे काफी जो है आशा रहेगी उनके कोच की कि एक गोल उनके बराबर में जाए और मैच ड्रॉ हो जाए. ये अभी का जो उनका मोटिव है वो होना चाहिए. लेकिन जो ऑपोजिट टीम है वो चाह रही है कि गोल करे. उनका प्रदर्शन भी देखिए, अभी 11 नंबर पे जो राइट विंग के प्लेयर है वो कितना अच्छा खेल रहे हैं, कितना अच्छा बॉल को कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जा रहे हैं. बिल्कुल. यहाँ आप एक चीज और नोटिस कर रहे हैं मिथुन जी कि यहाँ वॉरियर्स जो है ना, वॉरियर्स फुल्ली ट्राई करें. देखिए एक चीज पूरा गेम चेंज कर सकता है हमारी इस फुटबॉल में. इस मैदान में पूरा गेम अभी चेंज हो सकता है वॉरियर्स के द्वारा. सिर्फ एक ही गोल से टाई हो जाएगा लास्ट मिनट में अगर टाई हो, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है, फुटबॉल एक ऐसा गेम है दर्शकगण, जहां लास्ट मिनट में कुछ भी हो सकता है. एक गोल एक सेकंड पहले भी हो सकता है. और अभी से वॉरियर्स, हमारे कुआई वॉरियर्स चाहते हैं कि एटलीस्ट टाई हो. टाई होने से भी उनके पास एक रहेगा कि हाँ टाई तो हुआ, क्योंकि पिछला मैच वो हार चुके थे. अब अगर टाई भी रहेगा तो उनका वो स्कोर मैच थोड़ा सा मैच कर सकता है. क्यों मिल्टन जी? Correct. And so it's really awesome to see both the teams really putting heart and soul. And it's a goal for the. Probably that's a signal from the referee out there. Probably this can be disheartening for the Dalai Antlers. What an unfortunate for the Dalai Antlers. I guess this is not a goal. Let's listen to what happened. What an unfortunate. This is not a goal. This is not a goal. What an unfortunate for the Dalai Antlers. Otherwise, they could have made their other score and picked up to score number 2. And this is really sad. But the Kauai Warriors need to work hard this time. I think it's about only a few more minutes to go. And if they are unable to make their score, it's going to be difficult. It's really going to be difficult for them. Mithun, if the Kauai Warriors cannot pick up the point this time, it is going to be really disheartening for them, because even after the second match today, if they are unable to make any score, they would go back 0 in hand. देखिए आपने सजोरा और अमर दोनों सब्स्टिट्यूट को उतारा है. मौके मिलेंगे और इस मौके को आपको फायदे लेने चाहिए.
और अगर अभी वक्त है, अगर एक गोल करते, ड्रॉ भी कर देते ना आप, तो आपकी अभी इच्छा यही रहनी चाहिए कि ड्रॉ करे, लास्ट में देखा जाएगा, एक गोल हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मौज बराबरी पे पहुंच जाए। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इस कोशिश में आपका योगदान होना चाहिए। यहाँ पर एक प्लेयर जो शायद 15 नंबर के जर्सी हैं, तो शायद थोड़े जख्मी है, देखते हैं फर्स्ट एड पहुंच रहे हैं वहां पर उनके, देखते हैं ज्यादा चोटें ना आए उनको। क्यों सौरभ मेहता, आप इस मैच के बारे में जो भी आप आंखों दिखा देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मिथुन जी, इस लास्ट मिनट में मैं शायद और कुछ कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि आप मेरे पास है ना शब्द कमी पड़ रही है। क्यों पता है? आप देख सकते हैं 2 बार हमारे एंटलर्स, धलाई एंटलर्स ने ट्राई किया, दोनों बार अनफॉर्चुनेटली उनका गोल नहीं हुआ। 2 बार, नॉट इवन 1, लाइक 2 बार उनका अनफॉर्चुनेटली गोल नहीं हुआ। अगर वो गोल हो जाता तो लाइक अभी होता 3-0। एंड अब सच बताओ तो मुझे भी लग रहा है कि वॉरियर्स, हमारे जो वॉरियर्स है, खोवाई वॉरियर्स, उनको थोड़ा और हार्ड ट्राई करना है, क्योंकि काउंटर अटैक के साथ साथ अब उनको चाहिए एक गोल। उनका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, जहां तक अभी मैंने देखा जितने भी डिफेंसेस उनके द्वारा हुए हैं, इसी कारणवश एंटलर्स आज गोल नहीं कर पा रहे हैं। वो पहले 5 मिनट के बाद अब तक उनका एक गोल नहीं हो पाया है इस बेहतरीन डिफेंस के कारण। पर ये डिफेंस कब तक काम आएगा? मिल्टन जी, एक बात, मिल्टन जी मैं इनसे सहमत नहीं हूं। बात यह है कि आप एंटलर्स को इतना पीछे जो ढकेल रहे हैं, एंटलर्स की कोशिश देखिए, आप कोशिश देखिए, इसका परसेंट एवरेज देखिए आगे बढ़ने की। वॉरियर्स की तरफ वो कितने जल्दी पहुंच जाते हैं और कितने गोल, इतने मौके मिले उनको। आफ्टर ऑल मिले नहीं, गोल हुए नहीं वाला बात है। लेकिन आप मिल्टन जी सहमत है कि नहीं, इस बात मुझे बताइए बस। And so the Antlers actually doing well, but I actually am not satisfied with the Kwai Warriors today, because Kwai Warriors, I think they have a good player, they have really good striker, they really have a very good defense in the ground, but it's probably not their day, and they are unable to really make their score through, and this is really disheartening. But to say that the Antlers or the Dalai Antlers not being able to make their 2 scores, which is an unfortunate for them, even after scoring the goal, is really disheartening today. But the Kauai Warriors really need to work right now. They do not have time anymore. There is only a few more minutes, and at this point of time, if they are not ready to sacrifice and give enough time and play with the ball, then this day is not theirs anymore. That's what I can say for today. That's true. एक्चुअली आपने एकदम सही कहा, पर दिल छोटा मत कीजिए मिल्टन जी। मुझे लगता है डेफिनेटली लास्ट मिनट में कुछ हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, कुछ तो बात है हमारे वॉरियर्स में, हमारे खोवाई वॉरियर्स में, कि अब तक इतने बेहतरीन तरीके से वो डटे हुए हैं, पर एक बार फिर से आउटलाइन के बाहर बॉल। क्या हो रहा है मिथुन जी, क्या लग रहा है? प्रोबेबिलिटी कुछ अनोखा कह रही है, क्योंकि अगर अभी एक और गोल, सौरभ मेहता, मैं आज एक प्लेयर से मैं इतना खुश हूं जो राइट विंग में लेफ्ट विंग में खेल रहा है दोनों टाइम, एरोन रियांग। मैं फैन हो गया उसका आज इस मैदान पे, जिस तरह के पास है, अभी जो गोल, वही बंदे ने वही सीधा गोल थापा वहां पर, अच्छा पास। यही डेडिकेशन आप देखिए, गोल हो जाए बड़ी बात नहीं, वो जो उसका डेडिकेशन देखिए, वो टीम को किस तरह से मैनेज करके, एंट मैंने बोला था, एंट लर्स देखिए, लर्निंग देखिए इनकी फुटबॉल की, इतनी अच्छी ग्रामर, लर्निंग जो है, पूरी अच्छी पासेस। मिल्टन जी पूरे खेल को इस तरह से आगे लेके जा रहे, गोल हुआ नहीं अलग बात है। Actually, this is beautiful. When a player understands the ball and actually controls the ball in his leg, he actually is the king of the ground. So we can see that the Antlers really doing it well this time, because like I said even in the beginning, this is their home ground, and this is the ground that they've been playing and practicing. They understand the ground really well, and so what an unfortunate here, the ball has gone over the goal post. But this time, you see, by this time, the Kauai Warriors also need to understand the ground really well. The ground is not really even, and there's no much grass over here. But you really need to understand the ground by this time and make your first score. And there's going to be a player change from the Dalai Antlers. And so player number 45 is called out, and will be replaced by Bikan Chakma, and is 22
player number 22 is going in. Also, the Dollar Antlers trying to play really beautiful this time, changing their players. You can see the players really young and strong, energetic. What a match these youngsters are playing today. What a match. What a match, no doubt. But यहाँ जो Warriors का जो कह सकते हैं ना जो उनका फोकस है वो शायद चेंज हो रहा है मिल्टन जी. मैं एक चीज़ बहुत तेज से नोटिस कर रही हूँ. They are trying their level best, but है ना उनका aggressiveness उनको शायद उनका जो वो गोल जो चूक रहा है उनके एग्रेसिवनेस की वजह से ही शायद चूक रहा है. हमारे प्लेयर को आप देख सकते हैं, प्लेयर नंबर 20 उन्होंने एक कोशिश की थी पर वो जो थोड़ा सा आ गया था ना वो कि अरे हो जाएगा तो वो फिर चला गया बॉल आउटलाइन के बाहर. तो ये चीज थोड़ा नहीं होना चाहिए. आपको पास, आप अगर चाहे तो पास दीजिए, पासेस के साथ अपने गोल पोस्ट के पास लेकर जाइए, फिर गोल कीजिए क्योंकि अभी समय नहीं है. हेलो, नफा है ना नुकसान है, तेरा दर्द ही कुछ ऐसा है. ये फील अभी वॉरियर्स को हो रही होगी कि कुछ इनका अभी होने वाला क्या होगा वो तो उनका भरोसे है कि टीम किस तरह से आगे ले जाती है. यहाँ पर लंबा विसल बचा है, शायद ये फ्री किक मिलेगी. जी हाँ, अभी शुजोती सर यहाँ पर इशारा कर रहे हैं. और देखना इस खेल में अभी ख्वाई वॉरियर्स को कुछ अपने बड़े कदम जो एग्रेसिव कदम है उठाने चाहिए क्योंकि आपका अटैकिंग अभी लास्ट और जो अटैकिंग होता है ना कि लास्ट पीरियड्स में वो आपको खेलना चाहिए. मिल्टन जी, इस खेल की जो पूरी सब्जेक्ट है इसको चेंज करना है तो आपको एग्रेसिव खेलना है. Correct. Actually, they need to play aggressive, but really need to take the ball in control because there is only another 3 minutes extension given by the referee here in the ground, and so there is only few minutes more for the Khoi Warriors this time. Khoi Warriors are not only 3 minutes long. Avani yagolo norte score kami angkai tini 0 no kifilna ngai. Avani bagai Khoi Warriors no avano sanamuso. You are great. You have been playing really good game, but you only have few minutes in your hand, and you need to work really hard this time. And within this 3 minutes, if you can make your first score, then you go 1-equal. Otherwise, it's going to be 1-0 for the rest of the game today. And the Dollar Antlers are going to win the game. And which is going to be really nice for the team because there is a huge support from the Dollar district players and also the audiences that are coming in. I think that there's going to be really awesome job by the Dollar Antlers today. What a wonderful match, I can say. By just looking at the kind of gameplay that they're doing right now and how the players are pushing the ball and playing to and fro, it's really nice to see the way they pass the ball, short passes, but really effective and really good job. मिल्टन जी, में एक बात अभी ये है कि मसलन ये अभी जो शॉट्स हैं ये आप लंबे शॉट्स के लिए प्लेयर्स को थोड़ा दूर खड़े रहना चाहिए. आप जमा मत होइए, थोड़ा दूर रह के अटैकिंग खेलने का कोशिश कीजिए. लंबे पासेस दीजिए क्योंकि समय कम है आपका. लंबे पासेस दीजिए, प्लेयर्स को बोलिए दूर में रहने के, साइड लाइन पे रहने के लिए और वहां से गोल करने की कोशिश कीजिए. जो अटैकिंग में है वो सेंटर पे आ जाए और साइड लाइन में जो राइट और लेफ्ट विंग से उसको बोलिए कि अच्छे पासेस दे. शोरूम इतनी पूरी गेम का जो अभी लेखा जोखा है ना ये काफी बहुत एकदम किनारे पे आ गई है. अभी किसकी नैया डूबेगी और किसकी नैया उभरेगी ये तो इस टीम पे डिपेंड करता है. बात अब हो नहीं रही है, बात अब हो सकती नहीं है क्योंकि अब आप देख रहे हैं ना हमारे सारे प्लेयर्स सिर्फ लगे हैं कि हमारे जो वॉरियर्स है वो लगे हैं कि एक गोल एटलीस्ट हो और उनका एक ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट इट वाज, ओ माय गॉड. एंड यहाँ एंटलर्स को आप देख पा रहे हैं, दे रियली डोंट वांट. बढ़िया बैकिंग यहाँ पर, अच्छा बैकिंग सौरभ मेहता यहाँ पर जो प्लेयर ने मारा है. आप ये आपको रेयर ऑफ रेयर दिखने को मिलेगा और बैकिंग बहुत कम सफल होते हैं. वो बहुत अच्छे प्लेयर होने चाहिए. और एक अच्छी कैरी करते हुए आगे लेके गए इनको, अच्छी पास है छोटी सी, लेकिन वही अपने पैर पे जो कुल्हाड़ी मारना होता है ना इसे कहते हैं सौरभ मेहता. लास्ट मिनट में
अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, सच में इसको कहते हैं। लास्ट मिनट अगर आपको येलो कार्ड या फिर अगर आपको रेड कार्ड, अगर कोई फाउल हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड कह सकते हैं कि लास्ट मिनट में फिर आपको वो डेंजर जोन मिल जाता है, तो ये शायद सही नहीं है। अभी शायद हमें कुछ नहीं मिला है, हमारे प्लेयर को कुछ नहीं मिला है, सो कुछ मिनट भी हम नहीं बोल सकते हैं। 3 मिनट हमें एक्सटेंड किया गया था, शायद उसमें कुछ सेकंड सब बचे हैं। देखते हैं क्या होने वाला है। मिल्टन जी, मैं तो बहुत घबरा रही हूँ, क्या लगता है आपको? I am being frightened by this type of game. I am not really satisfied with the kind of gameplay that's been played at this point of time. I actually expected at least one from the Koi Warriors, but this is disheartening. Like I said, I have been repeating the same line, but they could have done a little better because they have been pushing the ball, they have been getting opportunity quite often so that they can actually make their first score. But what an unfortunate for them. There is a really strong defense from the Dalai Antlers today, and their strikers from the Dalai Antlers and their midfielders were doing really awesome job and doing really great. Probably this could be another score, but no. The ball has gone over the goal post, and they really could not make the score this time from the Dalai Antlers. And so we almost have come to an end of the game. Probably the referee is looking into the time, and he might be calling in at any point of time, maybe calling in for the day. But probably another 1 or 2 minutes or so, or lesser than that. And it's going to get over for the day. And it's over for the day. What a day, what a match. And there comes the winner for the day, the Dalai Antlers. And sorry to say, but Koi Warriors, you did a good job. Better luck next time. What an opportunity. And all our dignitaries, appreciating the kind of gameplay that they have done. Really awesome today. We'd like to thank all the audiences that have come down here this afternoon at Birasi Mile or 82 miles. And it's really